عوامی اتحاد پارٹی طرف سرینگرس مز پریس کانفرنس سانز انجینئر عبدالرشید ورمل پارلیمانی سیٹ باپت امیدوار نامزد ڈوڈس مز کانگریس پارٹی طرف تقریبی سانز کیا سیاسی کارکن پارٹی مز شامل لیڈرو تو ورکرو طرف والیان استقبال تو سرن کوٹس مز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف میٹنگ سانز عمر عبداللہ سند ینول جلسہ کامیاب بنانے کی ضرورت پہ ورکرن پہ زور تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل عوامی اتحاد پارٹی طرف آج سرینگرس مز پریس کانفرنس سانز کرنا آمت یتھ دوران پارٹی ذمہ دارو طرف ون آو زی والن لوک سبھا انتخابن حوالہ میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یتھ دوران یہ فیصلہ نن آو زی انجینئر عبدالرشید آسن پارلیمانی سیٹ ورمل باپت پارٹی ہند امیدوار بہت ہی جو انٹیلیجنٹ لیڈرز ہیں تو وہ ہے ان کو ہم کھڑا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مستان اللہ تعالیٰ کا کرم شامل ہار رہا لوگوں کی حمایت ہم کو حاصل رہی شاید جموں کی 2 سیٹوں سبوکس پرسن عوامی اتحاد پارٹی تو پہلے تو آپ سب کا شکریہ شارٹ نوٹس پہ آپ نے یہاں پہ تشریف لایا اس کے لیے ہم مشکور ہیں ہماری میٹنگ ہوئی پولیٹیکل افیئرس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے فیصلہ لیا کہ انجینئر رشید کو ہم بارہمولہ پارلیمنٹری پارٹی سے کھڑا کر رہے ہیں الیکشن میں وہ کینڈیڈیٹ ہوگا ہمارا اور جس طرح لوگوں نے اس وقت 1 لاکھ سے زائد ووٹ اس کو دیے ہمارے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں تھے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لوگ خود ان پڑھ عورتیں خود نکلی اس کو ووٹ دینے کے لیے ہمیں پورا یقین اور اعتماد ہے انجینئر رشید تھمپنگ میجارٹی سے وہ سیٹ حاصل کرے گا آج تک ہم خاموش ہیں لیکن اب چونکہ پارلیمنٹری الیکشن آنے والے ہیں پارلیمنٹری الیکشن میں یہ ایسا نہ سمجھے کوئی بھی پارٹی ریاست یوٹی جموں کشمیر یوٹی کی کوئی بھی پارٹی یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے میدان صاف ہے انجینئر رشید اور اس کی عوامی اتحاد پارٹی ان کو زبردست مقابلے کے لیے تیار ہے اور عوام بھی آلٹرنیٹو چاہتے ہیں عوام کو بھی اس سے بڑا آلٹرنیٹو کوئی نہیں ملے گا یہ ایک دوسرے پر الزامات کہتے ہیں ایک کہتا ہے وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے دوسرا کہتا ہے یہ بی جے پی جب نیشنل کانفرنس کو بی جے پی کی ضرورت تھی تب نیشنل کانفرنس کا سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف تاریگیم فلسطین کس موجود صورتحال پہ افسوس اظہار کران ونمت زِ امریکہ تو دویمو طاقتور ملکوں طرف معاملہ حوالہ صحیح موقف نن آمت یم کن موسوم لوکن ہند قتل عام سپدن یل زن تمو امریکہ تو انسانی حقوقن ہزن عالمی تنظیمن پہ زور دیت زِ تم گژھن نیک نیتی سان برہ کن ین یت زن غازہ تو فلسطینس اندر سپدن وول ظلم ختم کرنے یو این او میں سیز فائر کے بارے میں بھی قرارداد پیش ہوئی کئی ممالک نے ساتھ دیا اور یہ اپیل کی بڑی قوتوں سے کہ اب حد ہو چکی ہے سیز فائر ہونا چاہیے یہ قتل عام رکنا چاہیے لیکن امریکی جو سامراجی طاقت ہے انہوں نے اسرائیلی جارحیت کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ کھلم کھلا اس کی پشت پناہی بھی کی یہ کہہ کر کہ سیز فائر ہوگا نہیں سیز فائر کے متعلق جو قرارداد پیش ہوئی اس کا بھی وٹو کر دیا یہ شرمناک رویہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کی طرف سے جاری ہے
नहते फलस्तीनियों पर जो यलगार है, जो बमबारी है, जो वहशत दहशत है, आज पूरा रिकॉर्ड मात हो गया। मैं ये कहूंगा कि ये आग के शोले बढ़ सकते हैं और किसने जाना कल पूरी दुनिया भी इसकी लपेट में आएगी। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों से ये अपील कर लूंगा, हम ज्यादा कहेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी तरफ तकरीबन सांझ करना आमुत यथ मज वकार रसूल वानी, रमन बल्ला तो दोयमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौकस पे कया सियासी कारकुन कांग्रेस पार्टी मज शामिल सपद, तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालियान इस्तकबाल करना आमुत। यल जन अत मौकस पे वर्करन पे जोर दिन आव तिम गसन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करन, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी मज शामिल सपदन। मोहम्मद शफी साहब, जिनका नाम लिया आगे आ जाओ सारे। गुपकार अलायंस जो है वो कुछ पार्टियों का था और वो श्रीनगर में कंटिन्यूअसली मीटिंग करते थे। उसमें कांग्रेस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की अलग विचारधारा है, कांग्रेस की अलग आइडियोलॉजी है। अलबत्ता जब ऑल पार्टीज की बात आती है उस वक्त कांग्रेस खड़ी हो जाती है। पहले 25 लाख वोटरों को जोड़ने का मुद्दा आया तो हमने ऑल पार्टीज की मीटिंग की। उसके बाद परसों हमने वहाँ पे मीटिंग की रेडिसन में ऑल पार्टीज की, उसमें 7 तमाम पार्टियां थी। आप देखेंगे कि उस जो वो समूह था ऑल पार्टीज का, उसमें आधी से ज्यादा पार्टी जो है वो गुपकार में है नहीं। गुपकार में वही है पीडीपी, एनसी और सीपीएम, बाकी सारी पार्टियां नहीं थी। लेकिन जब ऑल पार्टीज की बात आती है उस वक्त हम जमा होते हैं। अभी जो इशू था वो ये था कि यहाँ डेमोक्रेसी खत्म की गई है, इमरजेंसी सिचुएशन है, 10 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और अभी पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज का भी बीजेपी ने डेफर करवाया। वो इशू था, उसके बारे में हमने धरना भी दिया। सब पार्टियां आई थी, हजारों की तादाद में लोग थे। 370 हटने के बाद पहला इलेक्शन हुआ, तो पहले इलेक्शन ने ही बीजेपी को नक्शा दिखाया, आईना दिखाया कि तुम्हारा क्या वजूद है। वही हालत बीजेपी की जम्मू कश्मीर में होने वाली है। इसी तरह से उनका सोपड़ा जम्मू कश्मीर में भी साफ होगा। रविंद्र रैना जी कह रहे हैं कि वोट बैंक हमारा करगिल के अंदर बढ़ गया। रविंद्र रैना जी जो मर्जी बोले, वहां पे 2 सीटें ही बीजेपी की आई 26 में से, वो जो मर्जी। 50 के पार भी नारा दिया गया है। 5 के पार भी नहीं होंगे, आप लिख के लेना। बीजेपी की हालत खराब है। जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने तबाह और बर्बाद किया। किसी बाहर की स्टेट को यूटी बना के देखे बीजेपी, घास तक 100 साल नहीं चढ़ेगा उनका। हम देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ हैं कि जम्मू कश्मीर वालों को डिग्रेड करके यूटी बनाया। यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी की। सुरनकोटस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ इजलास सांझ करना आमुत, यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौकस पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत पार्टी लीडरों तरफ वन आमुत मीटिंग दौरान उमर अब्दुल्ला सिंदिस दौरस हवाले करने इन वाजन तैयारियन हिज साम हेना आमुत युत जन यह जल्द से कामयाब बनाने यी। यल जन वर्करन पे जोर दिन आव तिम गसन तैयारियन हवाले संजीद कदम तुलन, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग अत जलसस मज शिरकत करन। आज की मीटिंग का मकसद ये है इन नटशेल के 26 को यहाँ डेलीगेट सेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन की तरफ से, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब डेलीगेट सेशन को एड्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ बात आई जिसके लिए हमने मुजमुई तौर पे रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है और तमाम हमारे हजरात जहाँ जो बैठे हुए हैं इस मीटिंग में उनकी तरफ से ये बात आई। दूसरी जो डेलीगेट सेशन है या उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि तंजीम को कैसे फाल बनाया जाएगा, तंजीम को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पे डिस्कस हमने किया है। और फिर पीर पंजाल रीजन्स की जो प्रॉब्लम्स है उसमें मुतफिका तौर पे यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन जो हमने यहाँ अडॉप्ट किया है जिसमें तमाम चीज़ें जो आ जाएंगी वो ये है कि पीर पंजाल रीजन को बैकवर्ड एरिया रीजन डिक्लेयर किया जाए और उसमें जो हमारी जो यहाँ सरकार की तरफ से जो रीजनल इम्बैलेंस है
और इनकम डिस्पैरिटी जो है उसको जो है दूर करने के लिए जो हमारे यहाँ दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी मेडिकल हेल्थ में और एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो यहाँ टूरिज्म जिले पुलवामा में आज PDP तरफ मीटिंग हुंद सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी हिंद जिले सदर चारना आई तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन चुकसान कम करें युद्ध जन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने यी प्रायोरिटीज़ हमारी यही रहेगी कि जो इस वक्त के यहाँ हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, इन हालात की सही तौर अक्कासी की जाए और इस जो यहाँ के अवाम के एहसासात और जज्बात जो हैं जिनको दबाया जा रहा है उन चीज़ों की तर्जुमानी हो पाए, यही एक हमारा काम है। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए जिनके बारे में आप कह रहे हैं। हम तो इस चीज़ के लिए हमेशा से रेडी है और इस चीज़ की हम तर्जुमानी करते रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, चाहे ये पंचायत इलेक्शन है, ULB इलेक्शन है, असेंबली के इलेक्शन है, इलेक्शंस होने चाहिए। और क्यों नहीं हो रहे हैं तो इस पे मुझे लग रहा है कोई भी पार्टी हो, कोई भी ऑफिसर हो, इस होमपत्री कोलगमिस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये कई सियासी कारकुन पार्टी मज शामिल सपद तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान कम करें युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी मज शामिल सपदन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थाना है आबिद खान, ये देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये लोग जुमा भी नहीं पढ़ते का जो होमपत्री एरिया है, यहाँ पर आज हमने एक कन्वेंशन रखा है। तो जिस तरह यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अनथक मेहनत की, ब्लॉक टीम ने अनथक मेहनत की, इससे ये एक साफ इंडिकेशन है। जो हमारे बाकी ब्लॉक्स है उनमें भी प्रोग्राम होगा। आने वाले जो इलेक्शन है अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट, तो हम अपनी दमखम पर मेहनत करेंगे, ये कार्यकर्ता मिलजुल के मेहनत करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और लोगों को समझाएंगे जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, डेवलपमेंट की बात जो प्राइम मिनिस्टर ने की या करप्शन फ्री सिस्टम निजाम की बात की। ओवरऑल अगर देखा जाए देश पूरा में नेशनल PDP कांग्रेस मिलकर 70 सालों से उतना डेवलपमेंट नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी ने LG शासन के दौर में कंप्लीट करके दिखाया। और हम उम्मीद करते हैं यहाँ के लोगों ने जिस तरह सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी तरफ आज टैगोर हाल श्रीनगर मज यौम गयूर तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज कल्चरल अकेडमी हिंदो जिम्मेदारों, अदीबों, कलमकारों, शायरों तो फनकारों शिरकत कर अत मौके पे ये गुलाम रसूल गयूर सज अदबी खदमात गशरान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तत फनकारों तरफ तिहंद कलाम पेश करना आमद ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इन तकरीबन हिंद सांझ करने सत यमन मारूफ शख्सियतन हवाले नई पी जान दिन तत नवेन अदीबन कलमकारन तो शायरन ब्रो पकनस मज आसानी सपदन। गुलाम रसूल गयूर साहब की 18वीं बरसी है आज और एक तकरीब हस्ब मामूल उनके यौम विसाल पे मनाई जाती है। हर साल इस साल भी मुनक्किद हो रही है यहाँ पे, जिसमें वादी भर से आए हुए दानिश्वर और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के नुमाइंदा लोग हैं और उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। उनके लिखे हुए नगमे पेश किए मंजे हुए फनकारों ने और साथ में कुछ अच्छे लोगों ने मकाले भी पढ़े। शब्बीर अहमद शब्बीर साहब ने उनकी ज़िंदगी और हयात पर और उनके कारनामों पर, अदबी कारनामों पर एक मुफस्सल गुफ्तगू की। कई लोगों को बात करने का मौका मिला जिससे उनकी ज़िंदगी के ऐसे शोबे उजागर हुए जो शायद अभी तक सामने नहीं आए हैं। गयूर साहब ने खुद अपनी शहादत दी थी कश्मीर में अमन के लिए और हम सबको भी कश्मीर में अमन व अमान, हम आहंगी, आश्ती और जो रूहानी विरासत कश्मीर की है उसके लिए उन्होंने खूब तगोदौ की। आज यहाँ पे मेरी वालिद मोहतरम साउथ कश्मीर सैयद गुलाम रसूल गयूर की
18वीं बरसी इन्हें वादी कश्मीर के अतराफ अकनाफ से आए हुए मुफक्किरों और दानिशवरों का एक कहकशान है। हम आज उनको याद कर रहे हैं और याद करते रहेंगे। उन्होंने हमेशा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए बात की थी। वो इंसान दोस्त थे, गरीब परवर थे, समाजी और इनकलाबी शख्सियत थी और उनकी जो शायरी है चाहे उर्दू में या कश्मीरी में उस पर बहुत चर्चा हो रहा है और बहुत सारों ने लिखा है। बड़े बड़े जो यहाँ पर लिखारी हैं, हामिद कश्मीरी जैसे लोग, टेंग साहब जैसे लोग, तो बहुत सारों ने है कि इकबाल साहब के साथ रहमतुल्लाह इनकी शायरी मिल रही है और उस सब में मैसेज है कि एक शायर को एक नजरिया होता है। नाजरीन कशर खबरनाम जारी है तजरती वक्फ।